अब विवेकानंद again. सभी को मेरा प्रणाम. This is Priyadarshini from Vivekanand Kendra, Delhi, and I'm here to represent Vivekanand Kendriya Vidyalayas. So, firstly, I would like to briefly introduce Vivekanand Kendra, which was founded in 1972 as second phase of Vivekanand Rock Memorial. So, the reasoning behind that was Eknath Ranade ji, who is the founder of Vivekanand Rock Memorial, wanted to establish a living memorial to Swami Vivekanand, and that is what led to the establishment of Vivekanand Kendra, a living memorial to Swami Vivekanand, an extraordinary organization with ordinary men, which are the life workers of Vivekanand Kendra. I would also like to briefly introduce Vivekanand Kendriya Vidyalayas, which is the academic wing of Vivekanand Kendra, operating as a chain of schools under the project Vivekanand Kendra Shiksha Prasar Vibhag. The school teachings are obviously inspired by the educational philosophy of Swami Vivekanand of man-making, nation-building. I would like to briefly give some of the statistics related to VKVs. That is, it covers 6 states of India. So they are majorly remotely located, majorly northeast states of India, in few states of South India, and in Andaman and Nicobars. There are 83 VKVs, and it covers around 2,908 villages of India, and it incorporates and covers the students of almost 31 tribes, Janjati communities. Since VKVs are mostly affiliated to CBSE boards, so VKVs are in a very soft and subtle manner trying to incorporate the Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parampara, elements of these sort in their curriculum through, for example, we can see in the slide, through Agnihotra, through Vedic mantra chanting, meditation, Hanuman Puja, which is clearly visible in the screen. Basically, Vivekanand Kendra recognizes 5 Utsav, that is festivals and celebrations. Although we celebrate all the festivals of India, but then 5 festivals which are recognized by Kendra are, the first 3 I will just name them, that is Samarth Bharat Parv, celebrated between 25th December to 12th January. So 12th December was the date when Swami Vivekanand went to Kanyakumari and he meditated for 3 days. And 12th January is his birth anniversary. So we celebrate Samarth Bharat Parv between 25th December to 12th January. Then we also celebrate Sadhana Divas on 19th November to celebrate the birth anniversary of our founder, Eknath Ranade ji. And we also celebrate Universal Brotherhood Day, which is also celebrated by the whole nation, to commemorate the most celebrated lecture of Swami Vivekanand, which he gave in Chicago on 11th September 1893. So apart from these 3, the 2 more that we recognize is Gita Jayanti, which is observed on Margashish Shukla Ekadashi, and objectives are clearly mentioned. You can also see that on screen. And apart from Gita Jayanti, we also celebrate Guru Purnima, which is observed on Ashad Purnima. So in all these Utsav, we celebrate it through programs like bhajans, lectures, discussions on the themes on which through we can say Indian methodologies, employing Indian methodologies, and to propagate Indian knowledge system among students and society. The next slide also shows the other festivals that that we celebrate in VKVs, that is Krishna Janmashtami, Guru Purnima, Ganesh Chaturthi, Navratri, etc. We can also see in next slide that Vivekanand Kendriya Vidyalayas are putting an extra effort, despite being a CBSE affiliated school, that they celebrate Raksha Bandhan, Vidyaramb, Varsharamb, Universal Brotherhood Day in their school premises. The next slide shows the Wall magazine, which is
obviously crafted by the very students of Vivekanand Kendriya Vidyalayas, and we can see that this board depicts and covers topics of names of rishis, puja items in English, illustrations of Indian epics, traditional designs of kitchen, etc., which is clearly visible in this, on the screen. Next, we can see that Vivekanand Kendriya Vidyalayas are trying to incorporate Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parampara, in lessons, assignments, projects, and artworks, which is visible on the screen by employing methodological characters getting shaped by students from clay, papers, and clothes. Next, we can see that Vivekanand Kendriya Vidyalayas are also organizing exhibition very rootedly on the themes of Bharatiya Gyan Parampara, IKS, to promote IKS. And we can see that the topics that are being covered in these exhibitions are traditional hunting tools, traditional games and sports, traditional dresses and ornaments, traditional marriage system, specifically because they are located in Northeast, there are a lot of tribes, so marriage systems of tribes and traditional cooking and utensil items. Next, on the next slide, we can see that these slides and these boards are also prepared by students of VKVs. They have prepared alphabetical chart on rivers of India, scientists, mythological characters, etc. We are celebrating Sanskrit Subhasitani in our schools. We are also trying to kind of making students aware by, they are, in one sort, they are doing it themselves, and in doing so, they are learning it. So we have, students have themselves compiled Sanskrit mottos of different institutions of India. So in this way, on very primary level, they are getting to know the very basic themes and mantra of Sanskrit through their primary level of schooling. In next slide, we can see the display of indigenous games, sports, and local cuisine, exploring the traditional knowledge. We can also see skill in tradition, how the affordable and sustainable dustbins are made through bamboos by students of VKVs. We can also see that workshops are also being organized in VKVs for preservation of techniques and cultural artifacts, which was organized by Directorate of Research. And I would like to mention here that these workshops, these trainings are provided specifically because indigenous knowledge or Bharatiya Gyan, in order to preserve them, because we consider it as the repository of knowledge. So that repository of India must not be lost. So in order to preserve that, we are trying to make students aware through workshops and exhibitions. In next slide, we can see that a very soft, in very soft and subtle manners, we can see that how the classrooms are being named on the basis of mythological names and other sections too, like Dhruv. We can see the Vedic display of clocks in the classrooms. We can also see list of folk songs of different states of Bharat. So these are the initiatives which students in VKVs are themselves taking, despite being a school affiliated to CBSE. So it might have been a presumption that CBSE cannot include IKS, but then it can, because Vivekanand Kendriya Vidyalayas are doing so, and we are quite good in number. 83 number is a good number. So this has already been inculcated as very part and parcel in very nook and corner of Vivekanand Kendriya Vidyalayas. In next slide, we can see that we are trying to promote Bharatiya Gyan Parampara, Indian knowledge system, through Panch Bha, that is Bhasha, Bhusha, Bhajan, Bhojan, and Brahman in school premises, and also by propagating this in their daily lifestyle. So we are also trying to get in touch with their parents, and we are trying to propagate this philosophy of Panchbha, that is Bhasha, Bhusha, Bhajan, Bhojan, and Brahman. In next slide, we can see that how in our Karya Paddhati, we say it as Karya Paddhati. So there are basically 4 regular activities of Vivekanand Kendra. First is Sanskar Varg, which is specifically designed for the students aged between 6 to 16 years. And we try to propagate Sanskar
to children aged between 6 to 16 years through the medium of Ka, Kha and Ga. That is Kahani, Khel and Geet. And through the medium of Kahani, Khel and Geet, we try to give them sanskar for their fivefold personality development. Then we also, the other activity is Swadhyay Varg, which is specifically designed for these children's, or we can say Yuva, above the age of 16 years. And in this Swadhyay Varg, which we call in English as study circle, so we sit in a circle and we discuss, deliberate on topics of national importance or whatever theme which is common to all the participants of that circle. So it can be decided mutually. On next slide, we can see that we also in a way schedule Yog Vargs. Yog is the very core of Vivekanand Kendra, and Vivekanand Kendra has also got Gandhi Peace Prize in 2015. So Yog Varg are regular Varg. It is conducted on daily basis for 1.1 to 1.5 hours in a day, and we follow the yellow yoga book of Vivekanand Kendra publication. And Kendra Varg is for the volunteers of Vivekanand Kendra, and it is amalgamation of all the three Vargs that we discussed before, that is Sanskar Varg, Yog Varg and Swadhyay Varg. So it, in a way, it caters to all the age group, and it takes people of all the age group together. In next slide, we can see the pictorial representation of these Vargs through traditional outdoor games, through Sanskar Varg, through Kishori Vikas Shibir, and through Malakhamb practices. In next slide, we can see that cultural activities are very part and parcels of schools. So through dance, music and drama, we are trying to incorporate the mythology. We are trying to impart traditional values to students by educating them through dramas on the themes like universal brotherhood in Ram's life, values of life of Sri Ramakrishna, devotion from the life of Prahlad, relevance of the life of Sri Krishna, and the links of these dramas are also given on the slide itself. So this was all about what we do for promotion of Bharatiya Gyan Parampara in Vivekanand Kendriya Vidyalayas, despite being a CBSE school. So this was the effort made by Vivekanand Kendriya Vidyalayas. And apart from these, I have a very few suggestions, one of which I have already mentioned, ki we must stick to non-translatables, which I mentioned during the start of this program, कि जब हम बात कर रहे हैं यज्ञ की, तो यज्ञ की अवधारणा जब वेस्ट में नहीं है, तो हम क्यों उसको एक फायर सैक्रिफाइस या ऐसा कुछ टर्म हम यूज करें? तो वी मस्ट स्टिक टू यज्ञ इटसेल्फ. और क्योंकि हम यहाँ पे करिकुलम डिजाइन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक डिजाइन की बात कर रहे हैं, और हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि व्हेन वी आर जनरेटिंग अ टेक्स्ट बुक और करिकुलम, तो अब वो फॉर जनरेशंस रहने वाला है. तो जब वो फॉर जनरेशंस रहने वाला है, तो वी शुड स्टिक टू आवर ओन nomenclatures, which I have mentioned, like whatever we consider that which cannot be translated to any other language, because they don't have that socio-cultural context behind that word. So we must stick to non-translatable is the very first suggestion that I wanted to give in our textbooks and curriculum, and also while preparing the syllabus. So we must not use the word religion even in the brackets, because that also gives a wrong kind of concept to the students. Second is that when we are saying Hinduism, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, लेकिन हिंदुइज्म है इन इंग्लिश. तो इज्म ऑल्सो मतलब वो कहीं ना कहीं इज्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ डॉगमेटिक बिलीव्स. तो वो खुद तो क्रिश्चियन है, वो खुद इस्लाम है, लेकिन हम हिंदुइज्म है, हम बुद्धिज्म है, हम जैनिज्म है. तो आई थिंक अब हमारे पास अपनी टेक्स्ट बुक्स होंगी, अपना करिकुलम होगा, जिसमें हम ये क्लियरली मेंशन कर सकते हैं इन इंग्लिश हिंदू वे ऑफ लाइफ, बौद्ध वे ऑफ लाइफ, जैन वे ऑफ लाइफ. तो वी मस्ट नॉट यूज द टर्म्स जैनिज्म, बुद्धिज्म, बिकॉज हमारा धर्म इज नॉट एट ऑल डॉगमेटिक. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन. थैंक यू.
आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो, मैं आपको भी चाहूँगा कि हमारे पैनल में कभी कभी एज एन एसेट कंट्रीब्यूट करते रहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे और विस्तार से चर्चा करूँगा। तब मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन फिलॉसफी पढ़ने की कोशिश किया है, समझने की, तो चर्चा करेंगे। और ये जो आपके सवाल हैं बड़े गूढ़ हैं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही विशद विषय है। इसका बहुत सामान्य सलूशन नहीं है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो जैन साहब में एग्री, भरते शाह साहब, कि जैनिज्म बुद्धिज्म अलग से भारत की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि उपनिषदों की अगली यात्रा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसी का पड़ाव है, सहयात्री हैं, कोई विरोधी धर्म नहीं है। ये जो फैलाया गया दुनिया भर का झूठ वो व्याख्याकारों द्वारा, तो उसको भी हमें अंडू करना है। और बैठेंगे आपके साथ, कभी वक्त होगा तो मैं इनसे कह रहा था श्रवण से कि जितने लोगों ने पीपीटी है, लिखित सामग्री अगर हमें दे देंगे, जो सुझाव भी हैं वो भी लिख के पॉइंट वार दे देंगे, और आपके नंबर हैं ही, तो मैं इंडिविजुअल भी बात करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी संस्थाओं के लोग यहाँ आए हैं उनके किसी भी एक विद्यालय को आप लोगों की अनुमति से जो भी देखना भी चाहूंगा, मैं उसको प्रैक्टिकली समझना चाहूंगा कि कैसे उसको हम और क्रियान्वित कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हम तो भाई भौतिकी के आदमी हैं। I think we are not at all aspirationally divided. Aspirationally, we all are united, and all of us will agree that we are here to give constructive suggestions for बिना एक्सपेरिमेंट के और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के किसी रिजल्ट तक आने से पहले एक वैज्ञानिक समझ यही है कि पहले पूरा प्रयोग होते देखो, उसको समझो, विभिन्न प्रयोगों के मध्य में कॉमननेस तलाशो, जो हमारे देश के लिए और जो जैसा साध्वी जी कह रही थी कि मानव बनाने के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए हम आएंगे भी। और दूसरा, एक हम श्रवण से कह रहे थे कि कभी कभी आप लोग अनुमति दीजिएगा तो जूम पर भी आप लोगों से कभी कभी हम सुझाव लेते रहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आप इसमें क्या सोच रहे हैं, तो उससे भी एक मिलता रहता कि एक हमारी यात्रा कंटिन्यूड होनी चाहिए, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ एक सिस्टम हम बना पाएंगे। अब सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा। Good morning to everyone over here. I'm Dr. Amarjyoti Sharma, naturopath and nutritionist, and I am also a principal of Sanatan Dharam Fullarwan Girls Senior Secondary School and Guru Goswami Ganesh Nath Model Co-Educational Senior Secondary School, Jalandhar. सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जो है वो इस टाइम 7 स्टेट्स एंड 2 यूटीज में काम कर रही है, जिनके अपने डिफरेंट स्कूल्स हैं, एंड वी आर वर्किंग विद द डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज विद द सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज विद द आईसीएसई बोर्ड्स। एंड हमारा साल में 2 प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे हरिद्वार में ही होते हैं, सप्तऋषि आश्रम में, जहाँ पे सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल इकट्ठे होते हैं। और मेरे साथ मेरे फेलो हैं डॉक्टर सिद्धू, शी इज़ आल्सो प्रिंसिपल इन अम्बाला। एंड हम वहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स मिलके यही कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग बोर्ड्स का एक ब्लेंड है उसको हम डिस्कस करते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने स्कूल्स में जो है सारे बोर्ड्स की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करें। और सनातन धर्म के जितने भी स्कूल्स हैं डेफिनेटली वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारे काफ़ी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, काफ़ी स्कूल्स अभी तक ब्लैक बोर्ड्स पे भी काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम एक अलग डिफरेंट ही दुनिया लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या फ़ायदा होता है कि वो हर एक बोर्ड की अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने स्कूल्स में ग्रहण कर रहे हैं। तो पहले बात तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी डॉक्टर एनपी सिंह, आपने हमें यहाँ बुलाया। आपने हमें कुछ टॉपिक्स दिए थे, जिसमें से मैंने सेकंड टॉपिक चूज़ किया है अपनी स्लाइड के लिए, दैट इज़ आधुनिक शिक्षा में भारतीय परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्य पुस्तकों का विकास। सो इफ जस्ट मैं अगर आप मेरी पहली स्लाइड आप चलाएं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बुक्स इन स्क्रीन टाइम इरा। कोरोना काल में सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, वो सारे के सारे ऑनलाइन चले गए थे, ठीक है।
काफ़ी हमने स्टोरी सुनी, कितने सारे बोर्ड्स थे, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने वर्क किया कि जिस एरियाज में मोबाइल्स नहीं थे पेरेंट्स के पास, उनको भी मोबाइल्स पहुंचाए गए। पर्सनली भी लोगों ने काम किया, लैपटॉप पहुंचाए गए। तो हमने क्या किया, हमारे लिए एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, डेट इज ओनली फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि फॉरेन में ये ऑलरेडी चल रहा था ऑनलाइन एजुकेशन, बट हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि हमने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया कि मोबाइल्स पे लेके आ गए। ठीक है जी। उसमें क्या था, टेक्स्ट बुक्स बहुत कम थी, मोबाइल्स पे टीचर्स जो थे डिफरेंट एक्टिविटीज करके बता रहे थे, पेरेंट्स को साथ में सिटिंग होना पड़ रहा था। एक टेबल और एक चेयर पे जो बच्चों की क्लास थी वो सिमट के रह गई थी। ठीक है, 2 साल हम लगातार यही करते रहे। उसके बाद अब भी क्या होता है, जब किसी स्टेट को इमरजेंसी हॉलीडेज करनी पड़ती है तो हम फिर क्या करते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन ले जाते हैं, राइट। तो इस टाइम क्या होता है कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं कहीं ना कहीं अपना वजूद खो चुकी हैं। लोगों को क्या लगता है, स्टूडेंट्स को क्या लगता है, मोबाइल दे दिए गए, मदर्स के पास काम करने के लिए टाइम था नहीं, ठीक है, बच्चों को मोबाइल दे दिए गए कि बेटा आप मोबाइल देखो तब तक मैं घर के काम कर लूं, राइट। या हमें ऑनलाइन वर्क करना पड़ा घर से ही। तो मोबाइल ने क्या किया कि गूगल जो था दैट बिकम अ गुरु फॉर एवरी स्टूडेंट। आज आप 6 साल के बच्चे को भी अगर पूछेंगे, अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको ये पता है कि आई कैन टाइप इन द गूगल एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ एप्स कम्स टू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं वहां से नॉलेज दे सकता हूं। तो सर टेक्स्ट बुक्स को अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो मेरा ये जो पीपीटी है इसका एक सोल यही है कि स्वामी रामदेव जी ने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए योग क्रांति ला दी दुनिया में। तो मैं सोच रही हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है एक शिक्षा क्रांति लेके आएगा दुनिया में। ठीक है जी। हम बात करते हैं रामायण एंड महाभारत की, हम बात करते हैं करैक्टर राम की। क्या हमने बताया है कि राम राज्य क्या है? क्या किसी भी बुक में आज तक ये पता चला है कि इस बच्चों को ये बताया गया कि व्हाट इज अ राम राज्य? राम राज्य इज दैट country where honesty is the best policy, where unity is a strength। जो बात हम करते हैं, जो हम कोट्स बोलते हैं, वो राम राज्य में थी। We are talking about the हनुमान चालीसा, we are reciting it in the schools। हमारे सनातन धर्म स्कूल में हर एक मंगलवार को असेंबली में हनुमान चालीसा रिसाइट होता है, ठीक है। बट क्या हमने हनुमान कैरेक्टर के बारे में अपने बच्चों को बताया? द लॉयल्टी, द डेडिकेशन, द हार्ड वर्क, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ हनुमान। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में अगर हम अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज या आर्ट ऑफ टीचिंग को लेके चलना चाहते हैं तो हमें अपने जितने भी पौराणिक हीरोज हैं उनकी हमें आज के टाइम में जो हमें नीड्स हैं वो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेंगे स्टूडेंट्स को, ना कि हम फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे इंडियन में रिचुअल्स होते हैं। मरने के बाद हम हरिद्वार में आते हैं, हम कुशा घाट जाते हैं, वहाँ पे पुराने रिचुअल्स होते हैं। तो कुशा घाट इज मेड बाय महारानी अहल्याबाई। हमारे आने वाले टाइम में हमारे जो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं वो बच्चे भी आएंगे वहां पे, वो भी ये सारे रिचुअल्स करेंगे, बट उनको किसी को नहीं ये पता कि कुशा घाट बनाया किसने है। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे बीइंग अ बोर्ड हमें ब्लेंड होना पड़ेगा। एंड द बात अगर मैं कर रही हूँ आर्ट ऑफ द टीचिंग, सर हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस तो लेके चल रहे हैं, बट वेयर इज आवर नेशनल लैंग्वेजेस? व्हाई वी आर नॉट एडिंग आवर नेशनल लैंग्वेजेस आल्सो इन आवर सिलेबस? मुझे बेंगलोर जाके भी जॉब करनी है, मेरे लाइक नीट का एग्जाम होता है, डॉक्टर्स आर गेटिंग सीट्स, वन इज गेटिंग अ सीट्स इन द उड़ीसा, वन इज गेटिंग अ सीट इन द बेंगलोर, वन इज गेटिंग अ सीट इन द तमिलनाडु। सो वी ओके हम ये लेके चल रहे हैं कि इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि तमिल में भी आती है, उड़ीसा में भी आती है। But this is my personal experience when I visited in the Odisha and वहाँ पे एक कुंती जी का मंदिर है, उसके पास एक लेडीज बैठी हैं जो कि सॉवेनियर बेचती हैं जगन्नाथपुरी जी के। आपको सुझाव क्या है बहन जी? सर मैं ये बुक्स के लिए ही सुझाव दे रही हूँ कि हमें ये सारा कुछ ब्लेंड करना चाहिए हमारी अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है ना? यस। एंड जैसे मैंने आपकी बुक्स की बात करी थी कि लाल फूलों वाली परी आपकी एक क्लास 1 में हिंदी की बुक है, स्टोरी आपने डाली हुई है, ठीक है। उसमें क्या है कि स्टोरी में ये है कि वो बच्चा फूल तोड़ता है तो लाल फूलों वाली परी आ जाती है और उसको बताती है कि फ्लावर प्लकिंग इज नॉट अ गुड।
बट जब हम बुक्स की बात करते हैं सर, तो मैं ये लेके चलती हूँ कि अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो वो 40 डिफरेंट ब्रेन बैठे हैं, ठीक है। अगर 40 में से 30 बच्चों को ये समझ आ रहा है कि जी फूल नहीं तोड़ना, तो लेकिन एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे भी होंगे ये सोचेंगे फूल तोड़ूं शायद परी मुझे भी मिल जाए। सो एक लैंग्वेज चूज करने के लिए, एक स्टोरी चूज करने के लिए वी हैव टू लुक आउट द 40 डिफरेंट ब्रेन्स, ठीक है। सेम आपकी इसी बुक में संतुलित थाली एक था, यू जस्ट गिव अ वन पेपर एंड यू जस्ट राइट इट डाउन के टीचर्स को बच्चे को संतुलित भोजन के बारे में बताना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पे QR कोड दें तो वहाँ पे हमारी एजुकेशन जो ऐप हमारी जो बोर्ड है उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी दी हुई है जिसपे कि हम नाटक भी करवा सकते हैं। अगर वो स्टोरी आप उसमें डाल दें तो वो सारी की स्टोरी जो है वो संतुलित थाली में आ जाएगी। सेकेंडली, आपकी जितनी भी बुक्स मैंने चेक करी हैं उसमें हमने अपना सारा रेफरेंस का पार्ट दिया हुआ है, आपने एक्टिविटीज भी बताई हुई हैं कि टीचर्स इस लेसन को इस तरह से करवा सकते हैं, एंड बिफोर दैट देयर इज अ 5 to 6 पेजेस ऑफ द रेफरेंसेस जो आप बता रहे हैं कि हमने रिसर्च से डाले हैं। बट माय सजेशन इज दैट कि अगर आप एक टीचर्स कॉपी अलग से बनाएं, देखिए स्टूडेंट्स को रिसर्च से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स पढ़नी है, योर बुक्स आर वेरी कलरफुल। हियर आई डोंट एग्री विद यू, ओके सर, बट अगर मैं 5-6 पेजेस की बात करें, ठीक है, को रिसर्च नहीं करना चाहिए, ये मैं आप इस बात से नहीं समझ। नहीं सर, मैं आपकी ये बात बता रही थी कि अगर ये टीचर्स की तरफ से बताया जाए तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आपका नोट करता जा रहा हूँ, ठीक है सर। तो यही चीज है हमारी कि आपकी जो 3rd क्लास की एक इंग्लिश की बुक है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट लेसन ही है, इट इज हियर। सो दैट इज रियली वेरी गुड कि वी विल स्टार्ट आवर 3rd क्लास फ्रॉम द सेल्फ डिसिप्लिन, एंड बिकॉज द प्री प्राइमरी सेक्शन इज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके चल रही है कि 5+3+ जो हमारा एक फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं, वी शुड नॉट ओनली वर्क ऑन द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, वी शुड वर्क ऑन द किंडरगार्टन आल्सो सर, because kindergarten need a motor skills development over there, right? And that is a base, that is a base of our education कि अगर मुझे write up करना है तो I need a hand, मुझे सिर्फ ये 3 fingers की जरूरत है एंड मुझे मेरी क्लाई की जरूरत है to move it out, so this we can check it in the motor skill development of kindergarten। तो अगर फर्स्ट की मैं वर्कबुक की बात करती हूँ कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कबुक्स, तो उसमें हमने रिटर्न डाला हुआ है, हम अल्फाबेट्स बता रहे हैं बच्चों को ऐसे लिखना है, बट उसमें अगर हम थोड़ी सी मोटर स्किल्स की एक्टिविटी भी डाल दें जिसमें कि हम जिसको हम पैटर्न राइटिंग कहते हैं, तो डेट विल बी अ मोर हेल्पफुल इन द बुक्स। फाइन। एंड अगर हम बात करें, प्लीज नेक्स्ट आप मेरी स्लाइड ऐसे चलने दीजिए बिकॉज आई एम नॉट इन टू डैट विद द PPT, आई एम अलाइनिंग एंड बात हम सारी वो कर रहे हैं कि द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज दैट आप ऑलरेडी अपनी बुक्स में कर चुके हैं, कि आपने बताया है कि रिसर्च वगैरह सारा कुछ है हमारा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि व्हाई स्टूडेंट्स नीड्स टू नो देयर हेरिटेज कल्चर? आप बोल लो तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। they should know about our rich heritage. For the example, अगर मैं एक बात लेके चलूं कि हम प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, ये हमारी परंपरा है, लेकिन वो हम पैर क्यों छू रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ योगा अलाइंड है कि जब आप अपनी कमर को बेंड करते हैं तो आपको एक्सरसाइज हो रही है। तो हमने जितना भी अपना कल्चर है, जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सब के सब आपस में एक तरह से जुड़ रहे हैं। तो मैंने अपने स्कूल में क्या किया है, अपने ब्लैक बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अ टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, देन देयर विल बी क्लास वर्क, होमवर्क, एंड द लास्ट इज आप होमवर्क बता सकते हैं। तो हमने टॉपिक्स क्यों लिखे हैं कि हिंदी का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली इंग्लिश वाले टीचर को भी हेल्प कर सकता है, इंग्लिश का टॉपिक SST को भी हेल्प कर सकता है, SST का टॉपिक साइंस को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो इंटरवेंट है आपस में सारे। तो आप जितनी भी बुक्स नहीं बनाएं तो प्लीज उसको ये थोड़ा सा रेशियो जरूर लेके चलें कि सारे सब्जेक्ट जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करें या एक दूसरे के साथ उसका वो करें। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। चूंकि आपने बहुत ही परिश्रम किया है, पुस्तकों को देखा है, तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पढ़ा और उस पर सुझाव दिए। मैं एक बहुत जनरल, चूंकि आपने इस प्रश्न को स्पेसिफिक छेड़ा है बुक्स का, तो मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊं कि जैसे हिंदी में कि आप MA किए है ना, तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। आप हमारी किताब को उठाइएगा तो पहले आपको
तीसरी से जब किताब उठाइएगा तो कोई न कोई एक ट्राइबल कल्चर का कवर पेज पर आपको मिलेगा। राइट सर। और ये एक अगर कोई बिहार का होगा, दूसरा कोई तेलंगाना का होगा, तीसरा कोई महाराष्ट्र का होगा, पुस्तकों में अलग बढ़ता जाएगा क्रम। ये 12वीं तक हमने ये डिजाइन किया जो आर्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि राइट सर। किताब उठाते ही उसे आर्ट इंटीग्रेशन से सामना हो जाए और उसमें भी वो उस आर्ट को जाने जो अभी तक ज्यादा इनविजिबल है। ट्राइबल आर्ट को आज मॉडर्न आर्ट के जमाने में लोग बहुत भूल रहे हैं। राइट सर। उसके पीछे 4 लाइन की विशेषता है और पुस्तक के अंदर का कोई एक चैप्टर का इलस्ट्रेशन कवर से लेके बैक पेज तक फैला हुआ सा उसी आर्ट फॉर्म में है। राइट। दूसरा, हिंदी में जैसे हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि जो एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात किया एनसीएफ ने, जो आप उड़ीसा की बात कर रही थी, कहीं और की बात कर रही थी, तो इतनी सारी भाषाएं बच्चों को तो नहीं समझाई जा सकती, उनकी रुचि पैदा की जा सकती है। तो हमने कोई एक लेसन उठाया, तो पहले तो एक संस्कृत का ऋचा मंत्र या कोई श्लोक होगा जो उस भावना से, थीम से जुड़ा होगा। इसके बाद जो भी हम दे रहे हैं उसमें आप उस लेसन का जो एक थीम है, जैसे मान लीजिए वृक्ष की बात हो रही है, तो उस वृक्ष को दूसरी भाषाओं में भारत के क्या कहते हैं, इस तरह से हमने एक प्लान किया डिजाइन कि पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक अगर बच्चा हिंदी पढ़ रहा है पुस्तक, तो कम से कम 60 शब्दों का उसे भारत की 15 अन्य भाषाओं में, जिसमें अनिवार्य रूप से दक्षिण की 4 भाषाएं हैं और असमिया है, कश्मीर की डोगरी है और ट्राइबल्स की संताली, इन भाषाओं में जरूर उसे 60-70 शब्दों का उन भाषाओं में भी शब्द उसे मालूम हो। राइट। एक मल्टीलिंगुअलिज्म का ये प्रयोग किया है ताकि उसकी रुचि आ जाए बच्चे की, बाद में फिर अपना एक्सप्लोर करेगा वो। 8वीं से हमने ये प्लान किया है कि 60 हमने ऐसे आम व्यवहार में प्रयोग होने वाले वाक्य, जैसे आप कहीं एज ए टूरिस्ट जाते हो या एज ए परीक्षार्थी जाते हो किसी दूसरे प्रदेश में, तो ऐसे कौन से वाक्य हैं जो तुरंत आपको सामना करना पड़ता है उसका। बिल्कुल सर। आपसी बातचीत के संवाद के लिए आवश्यक वाक्य, खास करके जो लोकल वेंडर्स हैं उनके तो साथ। वो हमने 62 डिफाइन किया है। ओके। काफी मंत्रणा करके कि कोई जाता है तो पूछेगा कि भाई रेलवे स्टेशन से उसकी कितनी दूरी है, कौन सा साधन मिलेगा, यहाँ पर कौन कौन टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट कौन सा है, भोजन कहाँ मिलेगा, भोजन के उसके नाम क्या है, वहाँ के व्यंजन के। इस तरह का हमने 60-62 वाक्य हैं और उन वाक्यों का 8वीं से लेकर 12वीं तक की हिंदी की किताब में लगभग 5 वर्ष होगा, हर में 4-4 भाषाओं में उसको कैसे बोलेंगे उसका भी एक चैप्टर हमने बना रखा है। That's what I think, sir. कि ताकि वो कम से कम 20 भाषाओं में उसे बोध हो जाए सामान्य बातचीत में। वरना हम फ्रेंच जर्मन तो जान गए, राइट सर। और भारत से ही नहीं जुड़ पाए। बिल्कुल। और ये पीड़ा मुझे तब आई कि जब मैं गया भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बात करने के लिए तमिलनाडु में, कई महानगरों में रखा था मैंने, मदुरई, चेन्नई, तो मैं डेफिनेटली वहां इंग्लिश में ही बोलना था क्योंकि लोग हिंदी समझते हैं तब भी मना कर देते हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि हम लोगों ने तमिल को कितना सम्मान दिया। यस। मैं उनके पॉइंट को वैलिड मानता हूँ, राइट। तो इसलिए उसको उठाया हमने। और जब चेन्नई में हमने बोला इंग्लिश में 1.5 घंटे, समझ रहे थे लोग लेकिन दिल से नहीं जुड़ रहे थे। तो मैंने फील किया कि हाउ टू कनेक्ट विद द इमोशनल कनेक्ट कैसे करें। फिर हमने उसके 10 मिनट का एक टीचर बुला के तमिल, उससे अपने कोर इसेंस को उनसे तमिल में हमने देवनागरी में लिखा और उसको इंटरनलाइज करके जब मदुरई में मैंने तमिल में बोलना शुरू किया तो वहां के लोगों ने बहुत प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया, जैसे कि पूरा दिल जुड़ा हुआ है। अब हम खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में कम से कम 16-17 भाषाओं में बोलने के काबिल हो जाए। दैट इज द नीड ऑफ आवर, कम से कम 10 मिनट।
ताकि तभी जुड़ेंगे लोग। तो गुजराती तो सीख लिया हूँ, मराठी भी सीख लिया हूँ, तमिल कन्नड़ सीख रहा हूँ। कोई न कोई टीचर बुला के मैं डेली 1 घंटे समझता हूँ कि इसको कैसे बोलना है, क्या कहना है। वरना बच्चों को यही नहीं मालूम है कि तमिलनाडु में जाओ तो नमस्ते कैसे करो, कन्नड़ में जाओ तो नमस्ते कैसे करो, लड़के लड़की को क्या कहते हैं, माता पिता को क्या कहते हैं, यही नहीं मालूम। तो ये एक योजना उसमें दिखेगी आपको। दूसरा, तिरुवल्लुवर जो संगम लिटरेचर है उसकी चर्चा भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिखी होगी आपको। हमने उसको संगम लिटरेचर को उतना ही महत्व दे दिया है जितना कि वैदिक लिटरेचर को, और दोनों में समानता भी दिखाई है कि अगर तिरुवल्लुवर के 3 वॉल्यूम जो हैं, इरम इब्नम और काम वाले, तीनों अर्थ जो त्रिवर्ग है वेदों का, धर्म अर्थ काम, उसी पे पूरे के पूरे उनके जितने भी दोहे। हम लोग दुर्भाग्य से क्या कहते हैं कि तिरुवल्लुवर इज द कबीर ऑफ साउथ इंडिया। तिरुवल्लुवर थे ईसा के 200 साल पहले, आज से 2200 साल पहले। कबीर दास जी हुए 15वीं शताब्दी में। तो कहना तो ये चाहिए ना कि कबीर इज द तिरुवल्लुवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो ये स्टीरियोटाइपिंग भी हमने खत्म किया है। और दूसरी भाषाओं के अच्छे जो अवार्डेड पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, जिनको उन स्टेट में अवार्ड मिला है, उनके हम किसी न किसी 2 हर वर्ष के पाठ में 2 पाठ ऐसे रखे हैं कि हमारी थीम से अलाइन करेगा। उस कक्षा के लिए जो हमने वैल्यूज डिसाइड किया उसी के अलाइन होगा, लेकिन कविता होगी मलयालम की, कोई कहानी होगी तमिल की। हमने साउथ को और नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश किया है, क्योंकि जो जिसको हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, कभी कभी उसको काउ बेल्ट भी कहते हैं, तो वो उस हिंदी हार्टलैंड के अलावा जो हैं, जो हिंदी से मिलती जुलती कम हैं थोड़ी भाषाएं, उनको हमने ज्यादा फोकस किया है। और उन्हीं के मलयालम के लोगों को, तमिल के लोगों को, कोंकणी की कविताएं, संथाली की कविताएं, उसका हिंदी अनुवाद करके फिर उसको हमने लेसन के रूप में लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ऐसे ही जानकारी के लिए पढ़े या ना पढ़े बच्चा, वो लेसन के रूप में। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हम सोशल साइंस में 6ठी 7वीं 8वीं में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थीम में हमें बनाना है, एनसीएफ कह रहा है। हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं सिर्फ अगर पंचायती व्यवस्था संविधान का नकल करके उठा के रख दें बस, ये तो हो गया कॉमन। अब वो हमारे भरतेज शाह जी की बात कैसे पूरी होगी, उसके लिए हमने उसमें डाल दिया एक रिसर्च ओरिएंटेड एक्सरसाइज कि जहां के रहने वाले हो तो वहां की ग्राम पंचायत व्यवस्था कैसी चल रही है और वहां क्या सिस्टम है, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाओ और क्लास में डिस्कस करो लाके। तो अब उस एक्सरसाइज से लोकल और रीजनल कवर हो गया। चाहे तमिलनाडु का बच्चा है तब भी वो एक्सरसाइज है, गुजरात का है तो गुजरात का गांव का बताएगा, आसाम का है तो आसाम का बताएगा, क्योंकि हम मोटी की किताब नहीं बना सकते। लेकिन हम एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट, रिसर्च नहीं डालेंगे, शोध की प्रवृत्ति कैसे होगी बहन जी। और आज के नए बच्चे, हमारे आपके जमाने, आप तो हमसे बहुत छोटी हैं, हमारे जमाने के से इंटेलेक्चुअली दे आर ब्राइटर। महर्षि अरबिंदो जो कहते थे ना कि एक इवोल्यूशन में अगला कदम इंटेलेक्चुअल कॉन्शसनेस का, हायर कॉन्शसनेस का आएगा दौर, वो दिख रहा है बच्चों में। फिजिकली बड़े थोड़े कम अनफिट दिख रहे हो आपको, फिट नहीं दिख रहे हो, लेकिन इंटेलेक्चुअली दे आर शार्पर देन आवर जनरेशन। उनकी रिसर्च की, क्यूरियोसिटी की, इंक्वायरी की प्रवृत्ति है। माँ बाप, टीचर उसको खत्म करते हैं, किल करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी इमेंस है। तो उसको देने के लिए उनको रिसर्च वर्क तो देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हम एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं, हमने उसमें एक रिसर्च में दिया हुआ EWS में 3री 4थी कक्षा में हमने उसमें दिया है कि तुम अपने जाकर के दादा दादी नाना नानी से पूछो, एक बनाओ पेपर छोटा, उनकी उम्र के अनुसार ही रिसर्च, कि पूछ के बताओ कि गांव में कितने तालाब थे और आज की तारीख में फिजिकली सर्वे करके आओ कितने हैं। और फिर हमने दादा नानी नाना से पूछो कि ये क्यों खत्म हो गए, और फिर उस पर फिर तुम इतनी करके आओ बस, बाकी भी डिस्कशन होगा उसमें कि क्यों कम हुए और इसका नुकसान क्या है। पहले कितने पेड़ थे गांव में, अब कितने पेड़ रह गए हैं, और किस किस प्रजाति के पहले थे, अब किस प्रजाति के हैं, कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई।
इस तरह का रिसर्च डालें, छोटा छोटा, कोई ऐसा रिसर्च हम नहीं डालें कि उसको अभी हम वैज्ञानिक बना दें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जब तक शोध की नहीं होगी। हम जो आचार्य बालकृष्ण कह रहे थे ना, हमने अपने इतिहास को क्यों नहीं खोदने की कोशिश किया? हम रट्टा मार, परसेंटेज पाना, बस यही सिखाया गया आपको। जैसे अगस्ता फाउंडेशन ने जो बात कही थी कि जब तक आप रिसर्च ओरिएंटेशन बच्चों को प्रारंभ से नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा इज द बेसिकली ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर है वो, हमारी आपकी तरह सरफेस ऑब्जर्वर नहीं है वो। मैं तो इसको अब अध्ययन कर रहा हूं, मेरी 2 साल की ग्रैंड डॉटर है, उससे ही मैं गुरु मान करके देख रहा हूं कि छोटे बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। इतनी शार्प है कि 1.5 साल की बच्ची पूरा का पूरा 3-3, 4-4 वाक्य बोलती है। तो हमारी नहीं होगी ग्रैंड डॉटर, और भी इस तरह होंगी। पहले लोग मान के चलते थे कि 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का, तो तुतलाएगा और उसमें 2-4 शब्द जानेगा। वो सीधे सीधे कहती है, जब मैं कभी जाता हूं तो पहले तो पैर छुएगी दोनों ऐसे, और फिर कहेगी कि दादाजी आप हरिद्वार से आ गए क्या, 1.5 साल की उम्र में। फिर पूछेगी कि आप क्या करते हैं वहां हरिद्वार में। फिर अगर उसको कहो मीटिंग क्या होती है, उसके एक स्टेप बाय स्टेप उसकी बातों को सुन के मैं उसको एंजॉय करता हूं कि इसका मतलब है कि हमें अपनी सेंस ऑफ इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी के अनुसार ही हमें एक्सरसाइजेस डालनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं डालेंगे तो कल को हम फिर वही रट्टा मार की ओर बढ़ा देंगे। युग धर्म की जो आवश्यकता है, युग की जो मांग है, उसकी प्रतिपूर्ति का ये महायज्ञ है, एक तरह से एक आयोजन है। और ये ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का इसका एक महान मील पुरुषार्थ है, मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सिद्धांत, व्यवहार और क्रिया। सिद्धांत को हमने माना कि ये हमारे वैचारिक दृष्टिकोण के लिए है, और व्यवहार को हमने माना कि ये पता होना चाहिए, एक वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए किसी भी विषय के बारे में, कि जब भी व्यक्ति को, बच्चे को कभी जरूरत हो, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में अगर पढ़ करके बच्चा तैयार है, उसकी जानकारी है वैचारिक रूप से कि ये चीजें करने से ये होता है, तो जीवन में जब भी उसके सामने चुनौती आएगी, संघर्ष आएगा, या कोई ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट होगी, तो वो उसको आंसर करने के लिए तैयार होगा। आज की जो पीढ़ी हमारे सामने दिखती है, तो बहुत सारे शब्दों से वो परिचित नहीं है, बहुत सारी बातों से परिचित नहीं है। उनकी बातों का स्तर, उनके चिंतन का स्तर और उनकी शिक्षा का स्तर, कहीं कोई साम्यता नहीं है, और ये इसका एक बड़ा कारण है। तो हमने उसके जो 4 आयाम लिए हैं, जिस आधार पे हमको क्रियान्वित करने का अभ्यास इस दिशा में करना चाहिए। अगली स्लाइड। ये जो 4 पक्ष निकल के आते हैं हमारी ज्ञान परंपरा से, एक तो जीवन दृष्टि, व्यू ऑफ लाइफ। हमारा अपना जो परसेप्शन है, हमारी जो जीवन दृष्टि है, वो हमारी संसार के, हमारी दुनिया की रचना करती है। जो ये 4 आधार है हमारी शिक्षा में लाने के लिए, कि बच्चों की हम जीवन दृष्टि, जीवन आदर्श, और जीवन आदर्श के साथ में उसकी अपनी जीवन पद्धति को हम संतुलित कर पाए। तो उसका जीवन लक्ष्य अपने आप, जो आंतरिक विकास है, चेतनात्मक विकास है, तो वो अपने आप चीजों के प्रति उसको ले जाता है। प्रकृति हमें अपने आप विकसित करती है, विकसित बनाती है। ये सिद्धांत को हम मानते हैं और उसी को हम बच्चों में देने का प्रयास करते हैं। जैसे ये पानी है, ये जल है, दिव्य जल। अब इसमें कितना मिनरल है, विटामिन है, प्रोटीन है, ताकत है, इसमें घंटे भर बात कर सकते हैं एक चीज, या इसको उठा करके पी सकते हैं। इससे जो तृप्ति मिले, इससे जो संतुष्टि मिले, इससे जो पोषकता होते, ये 2 चीज। मूल्य वो चीज है जो जीवन में, जो व्यवहार में, जो आचरण में। धर्म वो है जो कर्तव्य में, कर्तव्य परायणता में है। हम आप शिक्षा जगत से संबंधित है, तो हमारा धर्म है इसके साथ न्याय करने का, ईमानदार बने रहने का, उपलब्ध रहने का। लेकिन हमारी जो वृत्ति है, हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान दिया है, वो सजगता का, वो होश का दिया है, और वो हर एक की जीवन शैली में निर्धारित किया है, दिनचर्या में निर्धारित किया है, स्पष्ट लिख करके रख दिया है। और सैकड़ों जगह बताया है कि एक पिता का कर्तव्य क्या, एक आचार्य का कर्तव्य क्या, एक विद्यार्थी की जीवन शैली, उसका कर्तव्य क्या।
तो ये वैचारिक रूप से, कल्पनात्मक रूप से और इस पे नहीं है। ये जब तक उसमें बहेंगे नहीं, जब तक उसको पिएंगे नहीं, उसकी सार्थकता, उसका स्वाद नहीं, और उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसी आधार पे हमने जो कुछ अभ्यास लिए हैं, अगली स्लाइड पे जाएंगे, ये इस पे चर्चा हो चुकी है। उपासना, साधना, आराधना, ये हमारे क्रियात्मक पक्ष है कि जब हम शुरुआत करें तो उपासना से, साधना से, आराधना से, हाँ 1 मिनट में इस पे बात करना चाहूँगा। ये जो उपासना का पार्ट है, ये हमारे अंदर जीवन दृष्टि को पैदा करता है। उपासना का मतलब है कि 24 घंटे में से 5 मिनट का समय हम आंख बंद करके अपने आप के पास में बैठे, पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट का ऐसा समय हो। इस तरह से बच्चों का ये कि जिसको हम ध्यान कहते हैं, तो ध्यान में तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, म्यूजिक या अलग तरह के विकल्प हो सकते हैं। ये उपासना का मतलब है कि अपने आप के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में हम कैसे सोचते हैं, या हम जैसे पुस्तकों में किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारा जो माँ पिता ने नाम रख दिया है, तो उस नाम के साथ में हम अपनी परिभाषा को, अपनी डेफिनेशन को क्या दे सकते हैं, ये उपासना से निकल। एक चीज सर जो इसमें रह गई, वो हमने एक मूल्यांकन प्रक्रिया जो निर्धारित की है बच्चों की। तो कल हमारे विद्या भारती वाले सर भी कह रहे थे कि जो शिक्षक पढ़ाते वही मूल्यांकन करे तो ज़्यादा न्याय कर पाएंगे। तो हमने एक प्रयोग किया है और लगभग 15 साल से वो हम उसमें सफल रहे हैं। एक कोर्स हमने कंपलसरी डिजाइन किया और उस कंपलसरी कोर्स में कोई पुस्तक नहीं रखी, कोई एग्जाम नहीं रखा। सप्ताह में 2 दिन आचार्य जाकर के बच्चों से मिलते हैं। एक दिन वैचारिक सैद्धांतिक बात करते हैं और एक दिन उस विचार को, सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाए वो बात करते हैं। बाकी उसकी अलग अलग हमने एक्टिविटी जो कर रहा है अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने क्लासरूम में, कैंपस एक्टिविटी में, वहाँ से वो अपने आप में क्या प्रयास कर रहा है, उसके एफर्ट क्या है, उन चीज़ों को लगा करके मूल्यांकन हमने वहाँ से निकाला है। एक बार उनको बता दिया कि करना क्या है, क्या करना चाहिए, दूसरे क्लास में बता दिया कैसे करना है, उसके बाद में उनको छोड़ दिया। तो और जब एग्जाम होता है तो जो जिसने बताया, जो शिक्षक है, आचार्य है, वही सामने बैठता है, बच्चा आता है मौखिक रूप से 15 मिनट, आधा घंटे, जितना भी समय लगता है, उसमें टीचर बताता है, पूछता है, बच्चा अपना, जैसे हम जनरली बातचीत करते हैं। कक्षा के बच्चे होते हैं ये सब हमारे ग्रेजुएशन के होते हैं और 10th, 9th, 10th, 11th, 12th 4 बच्चे। आपसे अलग से और डिटेल डिस्कस करेंगे। आपसे तो जो बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो चीज को समझ पाए। इस प्रयोग को भी देखेंगे, इसकी स्केलेबिलिटी क्या है जी, क्योंकि कोई भी जो प्रपोजिशन रखते हैं तो न्याय दर्शन भी कहता है ना, एक आप रखते हैं सिद्धांत बनाने के लिए प्रपोजिशन, प्रतिज्ञा, जो आन्वीक्षिक की विधा है। जब प्रतिज्ञा रखते हैं आप, इसके बाद आप उसका हेतु बताते हैं कि इसका रीजन क्या है, फिर इसके बाद उसके कोई दृष्टांत देते हैं, उदाहरण, उपनयन, फिर इसके बाद उपनयन, फिर निगमन, निष्कर्ष, फिर निगमन है। तो आप प्रयोग जितने भी आप लोगों के हैं ना, मैं उसी न्याय शास्त्र की दृष्टि से ही देखूंगा कि ये विमर्श वाली प्रक्रिया तो हो गई जी सर। अब उन जो सुझाव दिए गए हैं वो अवयव के जो घटक हैं 5, उसके तहत हम देखेंगे कि एक बोर्ड के रूप में स्केलेबिलिटी कैसे होगी इसकी, और सर्व स्वीकार्यता हो, स्केलेबिलिटी हो, और उसकी जैसे 8वीं तक तो कोई भी मूल्यांकन प्रणाली अपना लो तो वो ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब 9वीं से 12वीं का बच्चा है उसको हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, फिर एक अलग तरह की स्किल और परीक्षा की वर्तमान व्यवस्था डिमांड करती है उससे। अब उसके साथ, दोनों के साथ कैसे सामंजस्य, सर उसका हमने एक लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स डिजाइन किया है, थोड़े इस लेवल जी डिस्कस करें जी। थैंक यू सो मच सर। मैं नीलेंद्रजीत कौर संधू हूँ,
और मैं रिप्रेजेंट करती हूँ दी सनातन धर्म SD कॉलेज सोसाइटी लाहौर को। हमारी सोसाइटी 108 इयर्स ओल्ड है एंड इट्स एन ऑफशूट ऑफ प्रतिनिधि सभा। 2016 में हमने एक नया करिकुलम डिजाइन किया जिसका दृश्य अभी आपको दिखाएंगे। हमने वैल्यूज को इंटीग्रेट किया अपने हर चैप्टर में। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसे हम वैल्यूज बड़े बच्चों को हमें सिखानी बड़ी टफ हो जाती है, तो हमने अपने बच्चों को, जैसे हम उनको साइंस करवा रहे थे, केमिस्ट्री करवा रहे थे, तो हमने बच्चों को बोला कि ओके व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक एलिमेंट में एक अगर जो मेटल होता है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में एंड दे गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड जब वो चीज किसी को देते हैं तो उनको वापस क्या मिलता है? शाइन, लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ऐसे ही हमने उसको कोरिलेट करवाया कि अपनी लाइफ में अगर आप देना सीखें तो भगवान आपको लस्टर, शाइन देंगे। सो हमने वैल्यूज को हर चैप्टर में से निकाल के बच्चे को रूबरू करवाया। जैसे हम प्लांट्स करवा रहे हैं कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि इफ वी डोंट शेयर we will die, we will become obsolete. So it's very important to share. So हर चैप्टर में से हमने एक वैल्यू निकाली और वो बच्चों ने इतनी ब्यूटीफुली रिसीव की। So next slide. So हमने सर अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट लेके आए, स्किल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। हमने वी मेड श्योर दैट आवर स्कूल बिकम सस्टेनेबल। हम कोई भी चीज बाहर से नहीं लेके आएंगे, हर चीज हमारे स्कूल के अंदर बनेगी, बी इट फर्नीचर, बी इट एनीथिंग दैट वी टॉक अबाउट, बी इट यूनिफॉर्म। सो उसमें हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रयोगशाला बनाई फॉर द किंडरगार्टन चिल्ड्रन कि बच्चों को हाउसहोल्ड चोर्स से शुरू किया टू देयर हॉबीज एंड उसमें हमने एक किचन डिजाइन किया। प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड। तो उसमें बच्चे अपनी एक शॉप डिजाइन की जहां बच्चे अपनी शॉपिंग करके आते हैं, फिर कैसे घर में किचन में काम करना है हम उनको उस लेवल पे सिखाते हैं, फिर कैसे सर्व करना है। एंड हमारा जो करिकुलम हमने डिजाइन किया एब्सोल्युटली रूटेड इन ट्रेडिशन बट मॉडर्न इन आउटलुक। एंड इससे प्लीज मूव फॉरवर्ड। इसमें जब हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ इसको इंटीग्रेट किया और बच्चों को हम कोई भी टॉपिक, जैसे छोटे बच्चों का टॉपिक है नेबरहुड, नेबरहुड में हमारे पास से वी हैव एयरपोर्ट, वी हैव रेलवे स्टेशन, तो हम वो सारी चीजें स्कूल में क्रिएट करते हैं। वी क्रिएटेड एयरपोर्ट इन स्कूल, रेलवे स्टेशन इन स्कूल। तो आई गिव यू अ शॉर्ट ब्यूटीफुल एनेक्डोट। हमारा कोविड के टाइम में हमारे एक क्योंकि हमने एयरपोर्ट का पूरा वो मॉडल बनाया था और बच्चों को कैसे एयरपोर्ट में बच्चा अपना पासपोर्ट लेके जाता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कैसे एंट्री होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एवरीथिंग वी हैड डन विद द चिल्ड्रन। तो हमारे क्लास 2 का बच्चा कोविड के टाइम में उसके पेरेंट्स ने बैंगलोर जाना था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके। पेरेंट को कोविड हो गया, जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमको कॉल करके बताया कि हमारा बच्चा बोलता है मेरे को तो एयरपोर्ट का सब पता है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले जाऊंगा एंड मेरे को अलाउ किया जाए। एंड वुड यू बिलीव द सेकेंड क्लास चाइल्ड took his grandparents to Bangalore and brought them back just because he had done experiential learning in the school. So next slide. यहाँ पे सर हम क्या करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स किए फार्म टू यूनिफॉर्म। हम अपनी कॉटन उगाते हैं, कपास उगाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं उस कॉटन को, ये हमारे स्कूल का एरिया है विच इज डेजिग्नेटेड फॉर आवर क्रॉप्स ओनली। तो हम अपने कॉटन उगा के बत्तियां बनाते हैं। यू कैन सी इट ऑन द टेबल कि हमारी बत्तियां बच्चे खुद की कपास की, फिर उसकी डीसीडिंग होती है, उसकी फिर बत्तियां बनती हैं और फिर इन बत्तियों को इसका एक नया आगे स्टेप है कि हम अपने स्कूल में जो मस्टर्ड उगाते हैं फिर उसकी जो खेती करते हैं, फिर उसकी विनोइंग जो फिजिक्स के जो जितने प्रोसेसेस हम उनको कैसे सेपरेट करते हैं और फिर बच्चे आके जाके उनका तेल निकालते हैं, फिर उस तेल को इस बॉटल में बंद किया जाता है, बत्तियां भिगोई जाती हैं
हैं और इसके साथ बच्चे अपने हाथों से दिए बनाते हैं बिफोर दिवाली, और उन दियों को दे मेक श्योर, अब हम सिखाते हैं कि पुराने टाइम में कैसे बेक होते थे, आज के टाइम में कैसे बेक होते हैं, कैसे पहले फायर से बेक होते थे, उनको बेक करके देन दे आर सोक्ड इन वाटर, कि क्यों इनको सोक करना पड़ता है। हम फिर उनको दिखाते हैं कि अगर एक दिया हमने सोक नहीं किया तो उसका पानी सारा गायब हो जाएगा, ऐसे ही वो तेल ज्यादा सोक करते हैं, हमने सस्टेनेबल बनाना है। तो वो सारा प्रोसेस करके वो दिए फिर जाते हैं टू द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, जहां बच्चे उसको पेंट करते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं, और फिर हम इन दियों की एग्जीबिशन लगाते हैं। We sell these diyas to the parents on the PTM, and इसमें से जो भी रेवेन्यू आता है उससे जो पेरेंट्स कोविड में जिनके बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई उनकी फीस हम खुद जनरेट करते हैं, उनका लोड हम दूसरे बच्चों पे नहीं डालते। सो वी हैव एक्चुअली बिकम अ सस्टेनेबल स्कूल। So this project we've done is farm to uniform, because हम कपास उगा रहे हैं, तो we got in touch with the Khadi Sadan. They donated solar charkhas to us. हम अपना जो फाइबर बना रहे हैं, हमारे लूम्स हैं, हम कपड़ा बना रहे हैं, और हम वी मेक श्योर कि हमारा स्कूल नो पॉलिथीन जोन है। तो हम हर बच्चे को एक सोल्यूशन देते हैं, हम बोलते हैं पॉलिथीन नहीं तो क्या, तो हमारे बच्चों ने ये सोल्यूशन किया है कि हर इंडिविजुअल शुड कैरी दिस थैली इन द बैग और कार, बिकॉज दिस थैली हैज अ मैजिकल थैला इन इट, एंड हम ये कहते हैं कि इसको आप यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन, एंड दिस यू कैन वॉश इट and repack it into this small little thali, and we believe कि बच्चे को ना नहीं बोलिए, उसको solution दीजिए, ये नहीं तो ये। So next slide, and we give these thalis to everyone. अब Haryana was going to polls, so we told the children go research on how polling happened many years back and how EVMs have come in, and बच्चों ने वो की। तो छोटी सी वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे, please play the video. आपने तो बड़ा लंबा तैयार करके आई थी, आपको तो अलग से समय मांगना चाहिए। हाँ जी, यस सर। वोटर्स पार्क में हमने सारे हरियाणा के बच्चों को इनवाइट किया कि आप देखिए कि पहले कैसे वोटिंग होता था। सिंगल बैलेट बॉक्सेस होते थे जो कैंडिडेट के नाम के साथ डिब्बों में, एंड देन हाउ वी हैव ग्रेजुएटेड एंड आवर चिल्ड्रन इन द स्ट्रीम लैब, वी हैव अ स्ट्रीम लैब, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब। उसमें बच्चों ने ईवीएम्स बनाए और उसके मॉडल आउट ऑफ वेस्ट यहाँ दिखाए। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास आपका भाई, इनके लिए बहुत, आप जो है कई गुना ताली की डिजर्व करती हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हम इनका पूरा डिटेल ले लेंगे। एक पूरब में कहावत है ना, बनारस का मैं हूँ, कि हंडिया में एक चावल निकालो तो मालूम हो जाता है कि चावल कितना पका है पूरा। तो हमने देख लिया संकेतों में कि आपका बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इंटीग्रेट किया है कॉन्सेप्ट्स को। तो आपसे डिटेल इसका लूंगा और मैं उसकी पूरी देखना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब आप कोई विद्यालय खोलते हो किसी बोर्ड से तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो जाते हैं वो एक रिमोट विलेजेज में भी जाएंगे, ट्राइबल इलाके में भी जाएंगे, हिल एरिया में भी जाएंगे। तो हमें उसके लिए एक प्रारूप ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम रीजनल लोकल लेवल पर इसको कैसे स्केलेबल कर सकते हैं, तो उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे।